know that in class 9th we were just studying about my childhood. This chapter is just related to APJ Abdul Kalam, and I think we have already learned that APJ Abdul Kalam was having 3 friends. First friend was the priest of Rameswaram temple. Second friend Arvindan was engaged in business. He was having a touring transport business for transports. He was providing transport for the pilgrims, and Shiv Prakashan became a caterer. Now during the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform of carrying ideals and Lord Rama and to the temple and to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near the house. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. He was highly influenced with the Hindu religion. There was no discrimination in Hindu and Muslim religion, because the bedtime stories, as he is just writing here, his grandmother was just telling the story from of Lord Rama and as well as Prophet Muhammad also. So there was no discrimination. Secondly, one day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear cap with marked me as a Muslim, and I have always sat in the front row next the Ramanand Shastri, who were the sacred thread. बता रहे एक दिन हुआ क्या कि जब मैं 5वीं क्लास में था तो एक नए मास्टर साहब आए, और क्योंकि मैं टोपी पहनता था जो मेरे को सबसे अलग करता था, देखते ही पता चल जाता था कि मैं मुसलमान हूँ, और मैं फ्रंट रो में बैठा करता था। रामानंद शास्त्री के साथ ही बैठता था बगल में। रामानंद शास्त्री क्या एक जनेऊ पहनते थे, इसलिए वो ब्राह्मण थे, और मैं टोपी पहनता था इसलिए मैं मुस्लिम था। द न्यू टीचर कुड नॉट stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. नए टीचर को ऐसा लगा कि नहीं हिंदू प्रीस्ट का बच्चा, क्योंकि रामानंद शास्त्री के पापा जो बहुत बड़े पुजारी थे, सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, उस टीचर को ये नहीं लगा कि ये बच्चा हिंदू का बच्चा मुसलमान के बच्चे के साथ बैठे। देन व्हाट हैपेंड, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मेरे को कहा गया कि मैं पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाऊं। उस टीचर ने कहा कि तुम उठो और पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाओ। एंड ही लुक्ड utterly downcast as I shifted to my seat and in the last row. He looked utterly downcast. जब मुझे ऐसे बोल रहे थे, टीचर बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत छोटी जाति का समझ रहे हैं और इसलिए जानबूझ के बाहर फेंक रहे हैं, हमारे को भगा रहे हैं वहाँ। I shifted to the last row, left lasting impression on me. मेरे को उठ के और पीछे बेंच पे जाना पड़ा। After school, we went home and told our respective parents about the incident of Lakshman Shastri summoned the teacher. जैसे कि हम बच्चे थे, जब हम घर गए तो मैंने अपने पेरेंट्स को और रामानंद शास्त्री ने अपने पेरेंट्स लक्ष्मण शास्त्री को बताया। लक्ष्मण शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के पिता थे, बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में ही टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन। टीचर को डांटा कि आपको इस तरह की जहर, धार्मिक जहर बच्चों के दिमाग में नहीं डालना चाहिए, आपने ये जो किया बहुत गलत किया है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने कहा या तो तुम बच्चों से माफ़ी मांगो या तुम अभी यहाँ से चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strongest sense of conviction Lakshman Shastri conveyed. खाली टीचर ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ लक्ष्मण शास्त्री के कन्विक्शन को, विचार को, कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों के, कि इसको कितना गलत मानते हैं। रिफॉर्म हिज द यंग टीचर, और उस यंग टीचर को सुधारा गया।
On the whole day, the small society of Manameswaram was very rigid in terms of segregation of different social group. However, my science teacher, Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, was something of a rebel. जो मेरे साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक क्या थे, ब्राह्मण थे और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। उनकी वाइफ जो थी बड़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हिंदू रीति रिवाज को मानने वाली, जो दूसरे जाति के लोगों से भी घृणा करते हैं, इवन जो दूसरे लोगों से धर्म के लोगों के पास बैठना भी नहीं चाहते, इस तरह का ख्याल उनकी वाइफ का था। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने एक बहुत अच्छी का बच्चा प्रयोग किया। क्या किया कि I want to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city. He used to spend hours with me. वो कई घंटों तक मेरे साथ बैठा करते थे, मैं उनके साथ बैठा करता था। और एक कौतूहल का विषय था कि एक ब्राह्मण इतना बड़ा विद्वान टीचर और एक मुस्लिम का बच्चा वहाँ बैठा रहता है। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने, सुब्रमण्यम अय्यर साहब जो हमारे साइंस टीचर थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, कह लिए घर पर खाना खाने के लिए। फिर क्या हुआ, हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। जब उनकी वाइफ को पता चला तो बिल्कुल घबराई हुई थी, डरी हुई थी। घरे एक मुसलमान को बैठा के घर में खिलाओगे, ये कैसे चीज़ है, ये तो संभव नहीं है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन द किचन। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खाना बनाना तय किया। फिर उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मैं किचन में खाना इसको नहीं खिलाऊंगी, बाहर बैठा दो इसको कहीं। सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, not did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand. उन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया, उन्होंने सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने खाना खुद के हाथों से मुझे परोसा। एंड सेट बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे बगल में ही बैठ के खाने लगे। हिज वाइफ वॉज अस फ्रॉम बिहाइंड इन द किचन डोर। किचन के दरवाजे से मेरी इनकी पत्नी देख रही थी। आई वंडर वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड माई डिफरेंस इन द वे I ate rice, drank water or cleaned the floor after meal. When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him dinner again the next weekend. Next weekend में भी जब मैं वाइफ देख रही थी कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे खाने का तरीका अलग है। खाने के बाद मैं जो कोई जूठन गिर गया तो उसको उठा के मैं भी वैसे ही रख रहा था जैसे वो रख रहे थे। सुब्रमण्यम अय्यर साहब ने दूसरे वीकेंड पे भी मेरे को बुलाया खाना खाने के लिए। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problem have to be comforted. उन्होंने बोला कि तुम घबराओ मत, तुमको आना है, क्योंकि जब एक बार धीरे धीरे ऐसे करोगे तो बहुत सारे लोगों को हम बदल सकते हैं। When I visited his house the next week, Subramaniam Iyyer's wife took me inside her kitchen. जब मैं दूसरी बार गया तो जो हमारे सर थे उनकी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ के और किचन में ही लेके चली गई खाना खिलाने। एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स। उन्होंने अपने हाथ से खाना मेरे को खिलाया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेटेड। इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था और ये डिसाइड हो गया था कि हमारा इंडिया फ्री होगा, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। बहुत पूरे हमारे देश में एक तरह का कि उत्साह बना हुआ था कि अब हमारा देश खुद का होगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। मैंने अपने पापा से ये परमिशन मांगी कि मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके पढ़ाई करनी है, रामनाथपुरम जो इनकी डिस्ट्रिक्ट थी। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्बुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सेगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। ही कोटेड खलील, क्या हो गया, Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the son of daughters of lifelong for itself. They come through, but
not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. पिताजी मम्मी थोड़ी दुखी थी तो समझा रहे थे कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे ही नहीं हैं, हाँ तुम्हारे से हुए हैं, बट खाली तुम्हारे लिए हुए हैं ऐसा नहीं है, ये जाएंगे, इनको उड़ने दो। सिगुल एक बर्ड होती है जो स्वच्छंद करके समुद्र के ऊपर से तय पार करती है, चलती है, इतने हौसले होते हैं उसके अंदर। तो इनके कहने का मतलब है कि हमारे विचारों को बिल्कुल क्या किया गया कि इसको खुली आज़ादी मिली कि मैं जाके बाहर पढ़ सकूं। ये है APJ अब्दुल कलाम एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इनकी बुक है, वहाँ से लिया है। बच्चों मैं कल क्वेश्चन आंसर करूँगा, इसलिए कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी लेकर के बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच।